السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ ان خبروں کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ڈائنامک سکسیس دی جونیئر کالج، اپوزٹ مادنا پیٹ منڈی، سعید آباد، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 04029701124 اینڈ انسٹیٹیوٹ آف سکسیس اسکولز۔ کووڈ-19 کی دوسری لہر ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تلنگانہ میں کووڈ کیسز میں اضافہ، دوسری لہر اکتوبر تک رہے گی برقرار۔ سابق وزیر اٹالہ راجندر کی پد یاترا کا آغاز، قتل کی سازش تیار کرنے کا الزام، 23 دن تک 270 کلومیٹر پد یاترا کرنے کا عزم، حکومت کی الٹی گنتی شروع ہونے کا دعویٰ۔ تلنگانہ میں کانگریس و BJP کی پیش قدمی روکنے KCR متحرک، مشن 2023 کی تیاریاں، عنقریب 8 اضلاع کے ہنگامی دوروں کا امکان۔ بینکنگ و مالیاتی اداروں کے لیے شہر حیدرآباد مرکز میں تبدیل، گولڈن مین سنچز آفس کا افتتاح، 2 سال میں 2500 افراد کو روزگار حاصل ہوگا، KT راما راؤ۔ فلک نما ریل اوور برج کی تعمیر کے لیے مزید 6 مہینے کا عرصہ لگ سکتا ہے اور انجن بالی سے چندرائن گٹا جانے والی ٹریفک کے مسائل رہیں گے برقرار۔ کوکا پیٹ اراضیات کی فروخت میں چیف منسٹر کے رشتہ دار اور قریبی افراد ملوث، بے قاعدگیوں کا ٹھوس ثبوت موجود، احتجاج جاری رہے گا، ریونت ریڈی۔ فحش فلمیں بنانے کے الزام میں گرفتار شلپا شیٹی کے شوہر راج کندرا، 23 جولائی تک پولیس کی تحویل میں۔ آسام میں مسلم اکثریتی علاقوں کی آبادی پاپولیشن آرمی کے ذریعے کم کریں گے، وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کا اعلان۔ کیرالہ عید الاضحیٰ کے پیش نظر کووڈ پابندیوں میں نرمی پر فی الحال روک نہیں، سپریم کورٹ نے کی برہمی۔ شاہ سلمان کی مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد، عازمین سے احتیاطی تدابیر کے ساتھ حج ادا کرنے کی اپیل۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools. جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب، انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ میں تیزی سے بدلتے سیاسی حالات کے پیش نظر چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے ابھی سے مشن 2023 کے تحت اسمبلی انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے آئندہ 3 مہینے میں 8 اضلاع کے ہنگامی دورے کا منصوبہ بنایا ہے اور اندرون ایک ساتھ ریاست کے تمام اضلاع کا دورہ مکمل کر لیا جائے گا۔ 2014 میں تلنگانہ تشکیل کے بعد TRS برسر اقتدار آئی تھی اور کانگریس سے ارکان کے انحراف کے ذریعے پارٹی کا موقف مستحکم ہو گیا۔ 2018 اسمبلی انتخابات جو مقررہ میعاد سے 1 سال قبل کرائے
گئے TRS کو دوبارہ اقتدار حاصل ہوا۔ ریاست میں اپوزیشن کے کمزور موقف سے چیف منسٹر مطمئن تھے کہ ان کی پارٹی کم از کم 20 برسوں تک برسر اقتدار رہے گی، لیکن کانگریس و BJP ریاستی قیادت میں تبدیلی کے بعد TRS کے امکانات متاثر ہوتے دکھائی دے رہے۔ BJP کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے حکومت کے خلاف جارحانہ موقف اختیار کیا اور اٹالہ راجندر کی BJP میں شمولیت کے بعد تلنگانہ میں BJP دوسری بڑی طاقت دکھائی دینے لگی، لیکن کانگریس نے ریونت ریڈی کو پردیش کانگریس کی کمان حوالے کر کے کانگریس کے مردہ جسم میں نئی جان پھونک دی ہے۔ ریونت ریڈی کے جائزہ لیتے ہی BJP از خود تیسرے مقام پر پہنچ چکی ہے اور کانگریس نے خود کو TRS کے واحد متبادل کے طور پر عوام کے روبرو پیش کیا ہے۔ ریاستی وزیر IT و صنعت KTR نے بینکنگ اور مالیاتی خدمات میں سرمایہ داری کے لیے شہر حیدرآباد مرکز بن جانے کا دعویٰ کیا۔ رائے درگم میں گولڈن مین سیچز آفس کا افتتاح کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ KTR نے کہا ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے ملٹی نیشنل بینکنگ سیکٹرز کی جانب سے حیدرآباد پر خصوصی دلچسپی دکھائی جا رہی ہے۔ جاریہ سال حیدرآباد میں جن بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹرز اور کمپنیوں نے حیدرآباد میں سرمایہ کاری لگانے سے اتفاق کیا ہے، اس فہرست میں گولڈن مین سیچز کمپنی بھی شامل ہے۔ اس کا اعلان کرتے ہوئے انہیں کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ بینکنگ، مالیاتی اداروں، انشورنس شعبوں میں شہر حیدرآباد تیزی سے ترقی کر رہا۔ چند برسوں سے باوقار ملٹی نیشنل کمپنیاں حیدرآباد میں اپنی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ اس شعبے میں 1,80,000 افراد صرف شہر حیدرآباد میں روزگار حاصل کر رہے۔ وزیر IT و صنعت نے کہا ہے کہ شہر حیدرآباد امن کا گہوارہ اور یہاں کا خوشگوار ماحول قومی و بین الاقوامی کمپنیوں کو راغب کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہو رہا۔ KTR نے ISB IIM بنگلور کے تعاون سے ملک بھر میں 10,000 خواتین کو صنعت کار بنانے کا گولڈن مین سیچز نے جو منصوبہ تیار کیا ہے اس کی ستائش کی اور انہیں حیدرآباد میں وی ہب کے ساتھ مل کر کام کرنے کا مشورہ دیا۔ Midst of this pandemic, because a lot of technology companies, a lot of financial services companies, contrary to the popular perception, have been growing rapidly. But I think they have been growing in locations of their choice, in places where they can build a long-term kind of partnership. So not only Gunjan, but I would also like to thank David Solomon, the chairman and CEO of Goldman Sachs, who had also joined us virtually. I'd like to thank him, and eventually, hopefully, we'll also have him come down to Hyderabad, to India. What I would also like to point out to Gunjan and to all of you also is the banking, financial services sector and insurance services sector in Hyderabad has been growing at a rapid pace. If you look at the last few years, some significant, investments have come in. Since I'm sitting in Goldman's office, I don't think it would be very prudent to reel out. I already have, but I think doing it a second time would not go well with Gunjan, so I'd rather not do that. Lot of investments have flown in the last few years. Almost 180,000 plus employees are currently working in the BFSI sector alone, which is a remarkable number if you ask me, because for a sector such as this, to have such a large number in a city like Hyderabad is a telling comment on the ecosystem and the strength that this city has to offer. So I welcome Goldman Sachs, and I am very confident, because I loved a couple of their initiatives. I was sharing with them on the stage. فلک نما ریل اوور برج کی تعمیر کے لیے مزید 6 مہینے کا عرصہ لگ سکتا ہے اور انجن بالی سے چندرائن گٹا جانے والی ٹریفک کے مسائل برقرار رہیں گے۔ ریل اوور برج کی تعمیر کے لیے متعلقہ محکمہ جات سے 6 مہینے میں تعمیر کا وعدہ کر کے 1 مارچ 2021 سے راستے کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ 5 مہینے میں برج کا کام 50% بھی مکمل نہیں کیا جا سکا۔ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ مہینے ایک اور اعلامیہ جاری کر کے راستے کو مزید 6 مہینے بند رکھنے کا اعلان کیا جائے گا۔ پرانے شہر میں عوام نے کاموں کی سست رفتاری پر برہمی ظاہر کی اور کہا کہ تعمیری کاموں اور راستے کو بند کرنے کے ساتھ جو متبادل راستہ اختیار کرنے کہا گیا ان پر بھی مجلس بلدیہ کی جانب سے تعمیری و مرمتی کام جاری ہیں اور ان کے سبب متبادل راستوں پر بھی ٹریفک جام کا سامنا ہے۔ متبادل راستہ اختیار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اگر وہ چندرائن گٹا کی سڑک اختیار کرتے ہیں تو انہیں رومان ہوٹل کے سامنے کے حصے میں
ब्रिज की तामीर और सड़क की खस्ता हाली के सबब मुश्किलात का सामना है और अगर वो वट्टेपल्ली वरमगड्डा शास्त्रीपुरम का रास्ता इख्तियार करते हैं तो तोसी कामों से मुश्किल का सामना है और यहाँ भी ट्रैफिक जाम के सबब ट्रैफिक मफलूज रहने लगी है। शहरियों ने हुकाम से इन तामीर में तेजी लाने की अपील की है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कुक्का पेच की अराजियत की फरोख्त में 1000 करोड़ की बेकायदगियों का इल्जाम दोहराया और कहा कि इल्जामात के हक में उनके पास ठोस सबूत मौजूद हैं। अगर एक भी इल्जाम हुकूमत गलत साबित करती है तो वो मुकदमात का सामना करने तैयार है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में कोकापेट में 260 दलित खानदानों को अराजी अलॉट की गई थी, लेकिन केसीआर हुकूमत ने जबरन अराजी हासिल करते हुए उसे फरोख्त कर दिया। उन्होंने कहा है कि ऑक्शन के नाम पर हुकूमत से खरबत रखने वाले इदारों को अराजी हवाले की गई। इस मामले में केटीआर और संतोष कुमार मुलविस हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि केटीआर और संतोष 1 लाख करोड़ कर्ज देने के मौक़िफ़ में हैं और रियासत में अराजियत के मामलात में ये दोनों मुलविस हैं। उन्होंने कहा है कि सिद्दीपेट कलेक्टर लैंड माफिया की तरह रोल अदा कर रहे हैं और उनकी कंपनियों को अराजी अलॉट की गई है। रेवंत रेड्डी ने बताया कि कलेक्टर सिद्दीपेट ने चीफ मिनिस्टर के पैर छूकर दस्तूर की तौहीन की थी। उन्होंने कहा है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में टीआरएस ने अराजियत की फरोख्त की मुखालिफत की थी, लेकिन अब केसीआर के रिश्तेदारों और करीबी अफराद को अराजियत अलॉट की जा रही। డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తాను కదా, ఈ 210 మందికి ఇచ్చిన పట్టాలు గుంజుకుంటున్నావు కదా, ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఏడే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తావు చూపి. వాళ్ళంతా పేదోళ్ళే కదా, పేదోళ్ళనే కదా కాంగ్రెస్ పార్టీ 2007-8లో ఆ పట్టాలు ఇచ్చింది. వాళ్ళకి దారి చూపించకుండా, వాళ్ళకి బ్రతుకుదెరువు చూపించకుండా, ఆ పేదోళ్ళని ఆదుకోకుండా, వాళ్ళ నడిబజార్లో పడేసి నిల్వ నీడ లేకుండా చేసి వాళ్ళ భూములు తెగ నమ్ముకొని హుజూరాబాద్ ఎన్నికల కోసం ఖర్చు పెడతా అని చెప్తే నమ్మనికే తెలంగాణ సమాజం అంత ఎడ్డిదా గుడ్డిదా? ఎట్లా చూస్తాం? కేసీఆర్ నిజంగానే ధనిక రాష్ట్రం అనేది ఆయన సంతోష్ రావును, కేటీఆర్ను, హరీష్ను చూసి అనుకుంటున్నట్టున్నాడు. కేటీఆర్ను సంతోష్ నడితే నీకు ప్రపంచ బ్యాంకు దగ్గరికి అప్పులకు పోవాల్సిన పని లేదు. వాళ్ళిద్దరే 10 పైసలు మిత్తికి రాష్ట్రానికి ఎంత కావాలన్నా ఇస్తారో. 1,00,000 కోట్ల వరకు అయితే కేటీఆర్ సంతోష్ కలిసి అయితే అప్పియగలరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి. కాకపోతే మరి తండ్రి మీద నమ్మకం ఉందో లేదో, షూరిటీ సరిగ్గా ఉంటుందో లేదో అని ఇస్తలేరు. కానీ 1,00,000 కోట్లకైతే వాళ్ళిద్దరి దగ్గర ఏం ఇబ్బంది లేదు. రాష్ట్రం అప్పుల కోసం ఎక్కువ మిత్తి కట్టాల్సిన పని లేదు. 10 పైసల మిత్తికి కేటీఆర్ సంతోష్ 1,00,000 కోట్లు అయితే ఇవ్వగలరు ఇప్పుడున్న లెక్క ప్రకారం. వాళ్ళని అడుగు. नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कोविड-19 की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसके लिए शरीक दवाखाने होने वाले मरीजों की तादाद में फिर एक मरतबा इजाफा हो रहा। ज़राए के मुताबिक कोविड-19 केसेस के दवाखाने में शरीक होने के वाक़यात में अचानक इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में बामुश्किल 1 या 2 मरीज शरीक दवाखाने हुआ करते थे, लेकिन
गुज़िश्ता इसमें काफ़ी इजाफा हुआ और मरीज ज़्यादा तादाद में शरीक दवाखाने हुए। महकमे सेहत के एक अहदेदार ने केसेस में इजाफे का इतराफ़ करते हुए कहा है कि दूसरी लहर अभी ख़त्म नहीं हुई है, हम अब भी हदफ बनने वाले और गैर महफूज हैं। ये इजाफा तीसरी लहर का इशारा नहीं है बल्कि अनलॉक के बाद हरकत में इजाफे के बाइस केसेस में इजाफा मुतवक्किल था। इस अहदेदार ने कहा है कि दूसरी लहर अक्टूबर तक बरकरार रहेगी। केसेस में इजाफे से हुनूज कोई नया वेरिएंट ज़ाहिर नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादातर डेल्टा केसेस के ये केसेस रेवेंज ट्रैवल और लोगों की जानिब से कोविड से मुत्तलिक उसूल व क़वाइद पर अमल न करने की वजह से हैं। नाजुक हालत के मरीजों में सेहतयाबी बहुत सुस्त हो गई है। ICU और ऑक्सीजन बेड्स की तादाद वही बरकरार है। फिलवक्त 1377 ICU बेड्स और 1745 ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज हैं। महमूद उल हक हॉस्पिटल मल्लेपल्ली में अब ख़वातीन के अमराज और गायकोनोलॉजिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर सबा समरीन MBBS MS TAU गायकोनोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डॉक्टर फरहानाज MBBS MS सर्जन, डॉक्टर जियाउल हक MBBS MD DM कार्डियोलॉजिस्ट ख़वातीन के अमराज और प्रेगनेंसी के लिए माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज किया जाता है। मल्लेपल्ली में है ये महमूद हॉस्पिटल, तकरीबन 30-40 साल से पुराना हॉस्पिटल है। अब हम यहाँ पे गायनेकोलॉजी की सर्विस शुरू कर रहे हैं, ऑब्स्टेटिक्स की गायनेकोलॉजी की। ये खासकर हम लोग औरतों के लिए है, यहाँ पे कम से कम रेट में होगा उनके लिए, और जो हर उनके इलाज के लिए, जैसे कि सीधा आते ही पेशेंट को ऑपरेशन के लिए लेके जाना, जैसे कि बहुत कुछ हो गया आजकल इस टाइम पे। हम पहले पेशेंट को ऑप्शन देंगे, उन्हें समझाएंगे कि उनके मसलियात क्या है, फिर पेशेंट का रहेगा ऑप्शन कि वो क्या करना चाहेंगे, किस ऑप्शन पे जाना चाहेंगे। हम उनको खुला समझाएंगे वो चीज़ों को, फिर उसके हिसाब से हम लोग इलाज करेंगे उनका। सर्जरी की भी ब्रांच खोले हैं, लेडी सर्जन है हमारे पास। आपको जैसे कि लाइपोमा रहता, फाइब्रॉइड रहता, एडिनोमा रहता, ये सब चीज़ों के लिए हम लोग कम से कम रेट में अपने आवाम के लिए सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ओहदेदारों ने इंटर साल अव्वल के इम्तिहान अगस्त में मुनक्किद करने का फैसला किया है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद हुकूमत ने इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इम्तिहानात को मनसूख करके फीस अदा कर चुके तमाम तलबा को कामयाब बनाया था। फर्स्ट ईयर में तलबा ने जो मार्क्स हासिल किए थे, सेकेंड ईयर में उन्हें वही मार्क्स दिए थे। ताहम फर्स्ट ईयर के तलबा से कहा गया था कि अगर वो मार्क्स से मुतमईन नहीं है तो हालत ठीक होने पर दोबारा इम्तिहानात का इनेकाद किया जाएगा, जिससे वो इस्तेफादा कर सकते हैं। साल अव्वल में पास तलबा के लिए मसला पैदा हो गया है। अगर आइंदा तालीमी साल कोरोना शिद्दत इख्तियार करने पर अगर इम्तिहान मनसूख होते हैं तो उन्हें मार्क्स किस तरह दिए जाएं, इसका जायजा लेने के बाद फर्स्ट ईयर इम्तिहानात मुनक्किद करने का फैसला किया। पर्चे सवालात को आसान बनाने का फैसला किया गया। माजी की तरह पर्चे सवालात नहीं रहेंगे। यही नहीं, इम्तिहानात के औकात को 3 घंटों से घटाकर 1.5 घंटा करने का जायजा लिया जा रहा। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने मीडिया से बात करते हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ अहम उन्वान पर बातचीत की है। उन्होंने सबको बोनाल त्यौहार पर मुबारकबाद पेश की। जैसा कि आप सब जानते हैं, शहर हैदराबाद में बोनाल त्यौहार के साथ साथ ईद उल अजहा की तैयारियां भी जारी हैं। गंगा जमुना तहजीब का कायम रखते हुए इन त्योहारों को मनाया जाता है। इस मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने कहा है कि अगर किसी को कुछ परेशानी है वो पुलिस को इतला करे, पुलिस उन पर सख्त एक्शन लेगी, लेकिन कानून अपने हाथ में ना ले। ईस्ट जोन पुलिस की जानिब से रॉडी शीटर मुश्ताक इलियास मुश्ताक डॉन के कत्ल केस को हल कर लिया गया और ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस ईस्ट जोन की निगरानी में मुश्ताक के 5 कातिलों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हॉग आई टीम की जानिब से 30 गुमशुदा मोबाइल फोन्स भी रिकवर किए गए हैं। इस मौके पर अंजनी कुमार IPS ने कहा कि बारिश मानसून के चलते पुलिस 24 घंटे एक्टिव है। देखिए हमारे नुमाइंदों की ये रिपोर्ट। हैदराबाद में एक कार शोरूम की पहली मंजिल से नीचे गिर पड़ी। ये अजीबोगरीब हादसा शहर के अलकापुरी इलाके में वाक़ई गाड़ियों के शोरूम में पेश आया। भगवत नामी ने नई कार खरीदी। कार को शोरूम की पहली मंजिल से ओपन लिफ्ट के जरिए नीचे लाना था।
कार का मालिक कार में सवार हो गया। इस दौरान कार अचानक आगे बढ़ गई और पहली मंजिल से नीचे एक और कार पर गिर पड़ी। इस हादसे में दोनों कारों को नुकसान पहुंचा, जबकि गाड़ी का मालिक जख्मी बताया गया है। ऊपर से कार को गिरता हुआ देखकर लोग खौफजदा हो गए। सऊदी अरब के फरमारवा खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते हुए इस अमर पर अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि मुमलिकत की कोशिशों के नतीजे में कोरोना के असरात में कमी वाक़ई हुई है। ईद उल अजहा के मौके पर खुसूसी पैगाम में उन्होंने अल्लाह से दुआ की है कि मिल्लत इस्लामिया और सऊदी अवाम के लिए ये मौका खैर, सेहत और बरकत का बाइस हो। हुजाज अपने मनासिक खैरियत से अदा करके अपने अहल खाना में वापस लौटें। शाह सलमान ने कहा है कि मुमलिकत की कोशिशों से ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कोरोना वायरस के असरात में खातिर ख्वाह कमी हुई है। ममलिकत में मुक़ीम गैर मुल्कियों समेत 22 मिलियन अफराद को वैक्सीन लगाकर बीमारी के खिलाफ क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाया जा चुका है, जिसके बाद हम सेहत के मियार को मद्देनज़र रखते हुए महदूद तादाद के लिए हज के मनासिक खोलने के काबिल हुए। उन्होंने कहा है कि मेरी मनासिक हज अदा करने वाले आज़मीन को खुसूसी हिदायत है कि वो एहतियाती तदाबीर के साथ हज अदा करें। हमारी उन्हें कोशिशों का नतीजा है कि हुकूमत की तैयार करदा एप्लीकेशन से इस्तेफादा करते हुए 17 मिलियन से ज़ायद अफराद उम्रा और मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज अदा करने के काबिल हुए। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। सिर्फ सुनहरे ख्वाबों से नहीं बल्कि घर बनते हैं मजबूत इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ये करेंगे आपके ख्वाबों को सच। MS टेक्नो एंड कंपनी लेकर आए हैं एक शानदार व नायाब प्रोजेक्ट जिसका नाम है साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, नवाबों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर, आजमपुरा फरहतनगर इलाके में एबिट्स कोठी और मलकपेट से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर ग्राउंड प्लस 5th फ्लोर की बिल्डिंग, जहां आपके लिए 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स हैं दस्तयाब। जकी एंड एसोसिएट्स की जानिब से उम्दा व बेहतरीन स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का मायानाज स्ट्रक्चर, 24 आवर्स वाटर सप्लाई, पार्किंग फैसिलिटी, मस्जिद और प्लेग्राउंड की खरीद, JHMC अप्रूव्ड लोन और इंस्टॉलमेंट की भी सहूलत। बुकिंग शुरू है तो देर न करें और मजीद तफसीलात के लिए कांटेक्ट करें 9959023786 या फिर 9505321920 पर। MS टेक्नो एंड कंपनी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना में कोविड केसेस में इजाफा, दूसरी लहर अक्टूबर तक रहेगी बरकरार। साबिक वजीर इटाला राजेंद्र की पदयात्रा का आगाज, कत्ल की साजिश तैयार करने का इल्जाम, 23 दिन तक 270 किलोमीटर पदयात्रा करने का अज़्म, हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होने का दावा। तेलंगाना में कांग्रेस व बीजेपी की पेशकदमी रोकने KCR मुतहर्रिक, मिशन 2023 की तैयारियां, अनकरीब 8 अजला के हंगामी दौरों का इम्कान।
बैंकिंग व मालियाती इदारों के लिए शहर हैदराबाद मरकज में तब्दील गोल्डन मैन सर्चिस ऑफिस का इफ्तिताह 2 साल में 2500 अफराद को रोजगार हासिल होगा। केटी रामाराव। फलकनुमा रेल ओवर ब्रिज की तामीर के लिए मजीद 6 महीने का अरसा लग सकता है और इंजन बॉली से चंद्रायन गुट्टा जाने वाली ट्रैफिक के मसाइल रहेंगे बरकरार। कोकापेट अराजियत की फरोख्त में चीफ मिनिस्टर के रिश्तेदार और करीबी अफराद मुलव्विस, बेकायदगियों का ठोस सबूत मौजूद, एहतजाज जारी रहेगा। रेवंत रेड्डी। फहश फिल्में बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा 23 जुलाई तक पुलिस की तहवील में। आसाम में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों की आबादी पॉपुलेशन आर्मी के जरिए कम करेंगे, वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा का ऐलान। केरला ईद उल अजहा के पेश नजर कोविड पाबंदियों में नरमी पर फिलहाल रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने की बरहमी। शाह सलमान की मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद, आज़मीन से एहतियाती तदाबीर के साथ हज अदा करने की अपील। इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।